In my previous lecture, as I told you that for recombinant DNA technology, the first step is to isolate the total genomic DNA of an organism or a plant, from which we have to identify, we have to amplify, and we have to isolate a particular gene or gene of desired character. Finally, in recombinant DNA technology, पार्ट 4 अपने पास in a tube we have, for example, this is 200 microliter total genomic DNA, which is to be, we have confirmed that this genomic DNA is purified by agarose electrophoresis. Agarose electrophoresis is the separation of DNA of different molecular weight or different amount. In this electrophoresis, if you separate the DNA on an agarose gel, this is an agarose gel. If we get very heavy amount of DNA of high molecular weight, of high nucleotides, number of nucleotides are much higher, and a band, a very high density band if we get in agarose electrophoresis without any other bands, that is the RNA band, because we have removed the RNA at the time of purification. So electrophoresis किस चीज के लिए है? To see whether the DNA is purified or not. Only a single band, if you get the single band, अगर एक बैंड मिलता है आपको और वही बहुत ही हायर मॉलिक्यूलर वेट का, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का, it means this is the purified genomic DNA of that particular plant. Electrophoresis, type of electrophoresis, process of electrophoresis, we will discuss in detail in our next lecture. So electrophoresis का डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे. तो first we have to study in detail the electrophoresis. There are different types of electrophoresis. That is the page polyacrylamide gel electrophoresis, agarose electrophoresis, 1D electrophoresis, 2D electrophoresis, isoelectrofocusing is that again an electrophoresis, that is the 2D electrophoresis. So about the electrophoresis we will discuss in detail, but the function of electrophoresis is the separation of DNA of different molecular weight. We separate the DNA of different molecular weight by using electrophoresis technology. Now, if you have the 200 microliter, for example, the total genomic and purified genomic DNA of a plant or an organism, then first of all, we have to quantify the DNA. The quantification of DNA of total genomic DNA of a plant. जब आप एक टेस्ट ट्यूब में एक प्लांट का एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम का एक पर्टिकुलर टिश्यू का आपने डीएनए प्योर आइसोलेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसके अंदर टोटल जो डीएनए है ये मान लो 200 माइक्रोलीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन है, तो इस 200 माइक्रोलीटर्स के में एक माइक्रोलीटर, हाउ मच डीएनए, हाउ मच
क्वांटिटी ऑफ डीएनए और जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ बफर। इस बफर में 200 माइक्रोलीटर डीएनए माइक्रोलीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर टोटल जीनोमिक डीएनए पड़ा हुआ है, एंड वी डू नॉट नो द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डीएनए। सो इन दिस 1 माइक्रोलीटर मींस इस 200 माइक्रोलीटर में 1 माइक्रोलीटर में कितना डीएनए है, कितना नैनोग्राम डीएनए है, वो अपन को करना है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ बफर। फॉर दिस there is method of quantification of that is of genomic DNA is UV spectrophotometry. Ultraviolet UV spectrophotometry is the technique। spectrophotometer से अपन डीएनए का क्वांटिटी एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके लिए यू नीड अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए अपन क्या करेंगे कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 282 310 नैनोमीटर इज द रेंज ऑफ यूवी रेंज। इस रेंज में इसकी आप ऑप्टिकल डेंसिटी निकालोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक ए क्वेट। एक क्वेट होती है, एक क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड। यहां पर यू ऐड दी मिलिक्यू वाटर। मिलिक्यू वाटर इज नथिंग, दैट इज 4 ml of मिलिक्यू वाटर we add in the tube, and 4 ml मिलिक्यू means highest purified water in which there is no bacteria, no microbes are available in this water। क्योंकि अगर इसमें इस पानी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसका डीएनए भी यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर कर लेगा, उसकी भी क्वांटिटी बता देगा, तो वो इंक्लूड हो जाएगी अपन टोटल जीनोमिक डीएनए की क्वांटिटी में। इसलिए इसमें प्योरेस्ट वाटर लेते हैं, पायरोजन फ्री वाटर लेते हैं, माइक्रो फ्री वाटर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मिलिक्यू वाटर। तो मिलिक्यू वाटर लेने के बाद वी ऐड 1 microliter of that solution, 1 microliter of DNA बफर जिसके अंदर जीनोमिक डीएनए पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ बफर। अब इसमें से जो 1 माइक्रोलीटर वी ऐड द डीएनए एंड देन वी measure the optical density on 280 and 310 नैनोमीटर पे अपन लेके एक कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन से जितनी भी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उससे अपन एक कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला लगा के वी विल क्वांटिफाई डीएनए पर माइक्रोलीटर, बिकॉज अपन ने 1 माइक्रोलीटर ही डीएनए का सॉल्यूशन डाला है, बाकी सारा मिलिक्यू वाटर है। तो जितना भी डीएनए इसके अंदर, जितनी भी ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी उसकी कैलकुलेशंस होगी, वह 1 माइक्रोलीटर में डीएनए का प्रेजेंस होगी। जनरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन को एम्प्लीफाई करने के लिए, जीन को पढ़ने के लिए, डीएनए को पढ़ने के लिए, हम अगर आपका डीएनए प्योरिफिकेशन और डीएनए एक्सट्रैक्शन बहुत एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, तब 700 to 800 नैनोग्राम डीएनए पर माइक्रोलीटर यदि आपकी कैलकुलेशंस में आता है, 700 से 800, समटाइम इट मे बी मोर देन 800 नैनोग्राम, बट मिनिमम अगर 700 अगर नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर इस सॉल्यूशन में, बफर में डीएनए है 1 माइक्रोलीटर में, इट मींस दिस डीएनए was extracted properly in pure form, जो आगे जाके यूजफुल है। तो दिस इज द मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए।
वंस वी क्वांटिफाई द डीएनए कि भाई आपका 200 माइक्रोलीटर 500 माइक्रोलीटर जो भी वॉल्यूम है जिसके अंदर डीएनए डिसॉल्व किया हुआ है, वह डीएनए अगर 700 से 800 nanogram DNA is present in 1 microliter of the solution, it means the DNA quantity is optimum. DNA quantity is suitable for further experimentation in recombinant DNA technology. तो इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, डीएनए का क्वांटिफिकेशन कर लेंगे कि भाई अपने पास टोटल डीएनए इतना है. नाउ after extraction, purification means removal of RNA and other debris, impurities, and then electrophoresis 2 times. One when RNA is there and another electrophoresis after removal of RNA single band. उसके बाद quantification करने के बाद your genomic DNA is ready, your highly purest genomic DNA is ready for further experimentation in molecular biology or recombinant DNA technology. Now we will start how we can isolate the gene, how we can isolate the gene, how we can एम्पलीफाई द जीन, हाउ वी ट्रांसफर द जीन, कैसे सीक्वेंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे उस जीन को. तो इसके लिए क्या होता है कि लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक एपेंडॉफ ट्यूब है. इस एपेंडॉफ ट्यूब में मान लो जीनोमिक डीएनए है, जिसे मैं बार बार टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इस टोटल जीनोमिक डीएनए का आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया है. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं? यह कंफर्म करने के लिए कि यहां पर प्योरिफाइड, हाईली प्योरिफाइड जीनोमिक डीएनए है और नहीं. आफ्टर प्योरिफिकेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए, जीनोमिक डीएनए, अब इससे यू हैव टू सेपरेट अ पर्टिकुलर और अ जीन ऑफ योर डिजायर. अपने जो इच्छित जीन है उसको इसमें से आपको अलग करना है. अब इस जीन को सेपरेट करने के, इस जीन को सेपरेट करके एम्पलीफाई करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज नथिंग बट you have to cleave the DNA, you have to cut the DNA with the help of restriction enzymes. There are so many types of restriction enzymes. They cut, they excise, they restrict the DNA. Means काटते हैं DNA को एक particular जगह से. यह जो DNA है उसके मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, एक ट्यूब है. Here इसमें से मान लो it is 500 माइक्रोलीटर DNA और यहां पर अपन ने 20 माइक्रोलीटर डीएनए ले लिया. एंड यू हैव टू ऐड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अपन वी हैव टू बी स्टडी, टू बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको ले सकते, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो फर्स्ट इज अपन को जो जो चीज डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस भी कहते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनको कहां से लिया जाता है, ये क्या काम आते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये अभी मैं आपको केवल एक पूरा प्रोसेस बताता हूं, कहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम आएंगे, कहां पर आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस काम आएगा. देन इफ यू ऐड अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्यों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को
एक पर्टिकुलर जगह से काटने के लिए स्पेसिफिक होते हैं. There are so many types of restriction enzymes, and we have to use a particular restriction enzyme which cut the DNA from between two nucleotides. There is two sites of restriction enzymes, endonucleases. Number one is site of recognition and another is site of restriction. उसको रिकॉग्नाइज करने की साइट अलग होती है और उसके 10 बेस पेयर बाद वो उसको कट करता है. कोई एडेनिन और थाइमिन के बीच में से कट मारता है, कोई साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कट मारता है. तो अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस अलग अलग जगह से रिकॉग्नाइज करते हैं और अलग अलग जगह से डीएनए को काटते हैं. मान लो एक पर्टिकुलर आपके पास जीन है जिसकी यू नो द सीक्वेंस, इसमें वो जीन पड़ी है जिसकी सीक्वेंस आपको मालूम है, तब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे. तो जहां पर मान लो ये डीएनए का जीनोमिक डीएनए है और जीन इज देयर, दिस इज द जीन and we know the sequence of gene. You have to use a particular restriction enzyme to cut the DNA at the site of that particular gene which is to be recovered. तो यहां से काटने के लिए restriction enzyme आप यूज में लोगे. As soon as you will add the restriction endonuclease in the 20 microliter of genomic DNA in which that gene is present, तो वहां से यह क्या करेगा, इसके अंदर जहां पर ये डीएनए पड़ा हुआ है, मान लो ये डीएनए है और उस जीन की सीक्वेंस आपको मालूम है, यहां से यहां तक ये जीन है, तो इट विल कट फ्रॉम हियर, इट विल कट फ्रॉम हियर. तो ये जीन इससे अलग हो जाए. ये डीएनए का सेगमेंट जो आपके इच्छित सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड ए जीन. दिस जीन विल सेपरेट आउट, दिस जीन विल separate out or it will make a cut from here and here restriction enzyme. यहां इस सॉल्यूशन में जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस से इनका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ट्रीटमेंट देंगे, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन कौन सा यूज में ले रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर जीन को काटता है. किसमें से, ग्रुप ऑफ द जीन्स, ग्रुप ऑफ द डीएनए में से एक सेगमेंट को काटता है. उसको मान लो इसमें एक सेल का डीएनए नहीं है, इसमें हजारों कोशिकाओं का डीएनए और हर कोशिका में वो पर्टिकुलर जीन है जो अपन मान लो भी है a gene of 500 base pair, gene is AA. अब ये AA जीन जो 500 बेस पेयर की है वह हर सेल में है और अपने पास कई सेल का डीएनए पड़ा हुआ है, हजारों लाखों सेल का डीएनए पड़ा हुआ है. तो हर एक सेल में जो पर्टिकुलर वही जीन है, जो AA जीन है, जो 500 बेस पेयर की है, 500 न्यूक्लियोटाइड्स की है, वहीं से वो काटता रहेगा. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मींस मान लो वी हैव 1 lakh सेल्स, 1 lakh सेल का 1 लाख डीएनए बाहर आ गया, 1 लाख कॉपी ऑफ जीनोमिक डीएनए. तो हर एक में से वो जीन को काटेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. वी विल हैव 1 lakh कॉपी ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 1 lakh कॉपी ऑफ द पर्टिकुलर जीन, क्योंकि हर जगह जहां जहां जीन होगी, जिस जिस डीएनए में सेगमेंट में वहां से काट देगा और मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स विल बी देयर. और यहाँ पर अब डिपेंड करता है कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ द जीन जो अपन को मालूम है. तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अंदर डाल के कुछ समय के लिए इसको इंक्यूबेट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे. तब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां जहां ये जीन पड़ी हुई है, जितनी कॉपी पड़ी है, सबको काट देगा एंड देन वी विल सेंट्रीफ्यूज इट. सेंट्रीफ्यूज करते क्योंकि जीन इज वेरी ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेयर टू दी अदर जीनोमिक डीएनए. तो ऊपर वह जीन आ जाएगी और नीचे यहां से यहां तक का पोर्शन है उसमें जीन होगी और यहां पर हैवी जीनोमिक डीएनए रहेगा. यू हैव टू रिकवर. ये दूसरी ट्यूब में ये सारी जीन्स आप ले लोगे जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट की गई हो. तो दीज आर द
डिजायर्ड जीन्स और ये इसमें जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको मिल रहा है, आप रिकवर कर रहे हैं इस ट्यूब को, आप अपने पास रखिए। दिस इज द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन बाय यूजिंग restriction endonuclease। अगेन यह जो जीन है, मान लो मैंने आपको बताया ये 500 बेस पेयर की जीन है। बेस पेयर मीन्स न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं इसमें 500, और यहाँ आपने सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर लिए। अगेन एगेरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, मार्कर डीएनए साथ लगा के आपको एगेरो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ये जीन है, दैट जीन यहां पर 500 किलो बेस पेयर की, बेस पेयर की 500 बेस पेयर की ये जीन सेपरेट हुई मिलेगी आपको। तो पहला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन करके, बहुत हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज करके आप इसको अलग कर लीजिए, जो कट गई है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अलग हो गई है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये, और आप ये जो बैंड है जो यहाँ आए हैं इनको भी इल्यूट कर लेते हो, अलग से काट के वापस डिसॉल्व कर लेते हो, तो ये जीन आपके अगेन वापस टेस्ट ट्यूब में ले सकते हो। तो 500 बेस पेयर की जीन जीनोमिक डीएनए से अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंफर्म कर दिया कि ये जीन अलग हो चुकी है। नाउ अब इस जीन को किसी और प्लांट में डालने के लिए यू कैन यूज दी वेक्टर्स। वेक्टर्स we have to study, to be studied in detail next chapter, next class। अगली क्लास में अपन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या ये जो जीन आपके पास पड़ी हुई है उसको वेक्टर में डाल के तो काम कर सकते हो। वेक्टर कैन क्लोन द जीन, वेक्टर फॉर क्लोनिंग ऑफ जीन मीन्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वेक्टर वी कैन यूज फॉर जीन ट्रांसफर। दोनों काम करता है, वेक्टर जीन को क्लोन भी करता है और वेक्टर से जीन को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, मीन्स दूसरे जीनोम में ऐड किया जा सकता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है। तो दो काम है, इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन जाएगा और इस वेक्टर से आप क्लोनिंग भी कर सकते हो, जीन क्लोनिंग भी कर सकते हो, टू फॉर्म द लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी। वी हैव टू डिस्कस वेक्टर्स। दूसरा, इफ यू हैव दिस जीन, वेक्टर से जीन ट्रांसफर भी हो सकती है और क्लोनिंग भी हो सकते हैं। यहां से अगर आपके पास जीनोमिक डीएनए है, देयर इज नो यूज ऑफ वेक्टर एंटिबॉडीज, you can directly amplify the gene directly from genomic DNA, very easy method। जीनोमिक डीएनए के सैंपल से आप यहीं से by using different technique, by using PCR, अगर जीन को एम्पलीफाई करना है, क्लोन करना है, वेक्टर यूज कीजिए। जीन को ट्रांसफर करना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, यू कैन यूज वेक्टर। बट अगर इसी जीन को एम्पलीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो यू कैन एम्पलीफाई द जीन डायरेक्टली फ्रॉम जीनोमिक डीएनए। यहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज में नहीं लेना है, आप यहां से डायरेक्टली प्राइमर्स यूज में लेके, द प्राइमर पर्टिकुलरली फॉर a particular gene you can use and you can amplify it with the help of polymerase chain reaction or a machine that is called thermocycler, जिसको लोग PCR कहते हैं, polymerase chain reaction। तो we have to study in further about PCR, about vector, about restriction endonuclease। Then we will go further
for transfer of G. Thank you.